Well, good morning, dear students. I should not repeat time and again that you are enjoying good health and good study. One thing can be there, because study मैं नहीं समझता कि मेरे इस तरह आपको YouTube पे लेक्चर भेजने पे आप प्रॉपरली कर रहे होंगे, बट बच्चों टाइम इज वेरी 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 प्रीशियस. ये देखिए अभी दिवाली आ गई है, फिर भैया दूज आ गया है, इसके बाद वो क्रिसमस की हॉलीडेज एंड ऑल दैट. Though I will be going on sending you the lectures and all that, but still the time is short. आप ये मानकर चलिए कि ये आपका साल अभी वेस्ट नहीं होने देना है, ना स्कूल वालों ने ना ही गवर्नमेंट ने. वो एकदम से आप पे फिर बोझ डालेंगे कि आप 2-3 महीने में जो जनवरी फरवरी है, इन 2 months में आप अपने आप को गियर अप करिए. बट देन टाइम विल बी वेरी वेरी, देन थिंग्स माइट बी रनिंग आउट ऑफ योर हैंड्स. So please concentrate. Still, it is not bad if you start studying properly. Okay, thank you. Enjoy your study. So we are going on our chapter number 12, that is friction, and we have tried to understand what is the meaning of friction, what are the causes of friction, and on what factors the friction depends. Okay, then we have discussed in details that friction is a necessary evil. क्यों? It is a opposing force. Since it is opposing the motion of one object over the other when it slides or tends to move, sliding or rolling, anything. So, if we say it is a necessary evil, what it means? That there are advantages and disadvantages. Advantages being more as compared to our what? Since we can reduce the friction. Friction है, problems है, but we can reduce them. So today we will be concentrating on what? Methods of, yes, अगर वो disadvantages है, useful है, harmful है. Useful है तो हम क्या करना चाहेंगे? If friction is useful, तो हम क्या करेंगे? भैया थोड़ी फ्रिक्शन और बढ़ जाए, डेफिनेटली फ्रिक्शन बढ़ जाए और ज्यादा यूजफुल हो. फ्रिक्शन अगर हमारे लिए हार्मफुल है, कम हो जाए ताकि हार्म कम हो. सो देर आर सर्टेन मेथड्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन, एंड टुडे वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दैट. Methods of increasing friction where it is useful to us, and methods of reducing friction where it is harmful to us. And yesterday we have discussed about क्या कहते हैं वो advantages and disadvantages of friction. And advantages में हमने क्या कहा था, क्या पढ़ा था हमने बच्चों? Enables us to walk, enables that this vehicles to move, enables the brakes to be applied and all. The friction ना हो तो गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं. Then enables us to enables us to hold the thing. So many things we have studied. और जो हमारे हार्मफुल थी वो सबसे बड़ी क्या थी? ऑब्जेक्ट्स का घिसना, चाहे वो मशीन के पार्ट्स हैं, when they are rubbing, चाहे वो आपका शूज सोल है, या वो आपके टायर्स है, या फिर वो आपकी वो फ्रिक्शन जो है, इट इज रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, इट इज मेकिंग द मशीन्स हॉट अप हो जाती हैं. उससे अपने क्या है, समटाइम यू कैन सीलिंग फैन मोटर गोज ऑफ, वो क्या कहता है, उसकी जो वाइंडिंग है वो जल जाती है. तो कहने का मतलब क्या है? There are advantages, there are disadvantages. That is why in totality we say, though there are disadvantages of friction, but since it is having advantages also, it is a necessary evil. ये एक बुराई है, लेकिन ऐसी बुराई है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ाना चाहते. नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए. जैसे बोलते हैं ना, अब कहना नहीं चाहिए मेरे को, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खा के भी आदमी पछताता है और बिना खाए तो पछताता ही है. हंसने वाली बात नहीं है. तो लाइक दैट,
So it is a necessary. It is a necessary. So today let's start our what? Methods of increasing frictions. First, grooves are made in the shoe soles to avoid slippage. आपने देखा होगा बच्चों, grooves are made. क्या आपने कभी अपने शूज को उतार के उसके नीचे के सोल को देखा है बच्चों? उसमें सब डिजाइन टाइप वो गड्ढे से लंबे लंबे से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रूव्स. जैसे मैंने बोला था, क्या है? काज ऑफ फ्रिक्शन, ग्रूव्स एंड टाइनी हिल्स. फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ, grooves are there, tiny hills are there. So friction किसकी वजह से होती है? Grooves and tiny hills present on the surface which interlock with each other. अगर हम grooves बना दें किसमें? शू के सोल में. क्यों? आपने देखा होगा, if the sole of your shoe is plain, smooth, since we have understood that एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स अस टू मूव. हमारे चलने में यह सहायता करती है. जो फ्रिक्शन है, यू आर लिफ्टिंग योर फुट, पुशिंग द ग्राउंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स. जो फ्रिक्शन है, अगर बैकवर्ड आप फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन अपोजिट में लगाती है, आप चल पाते. तो अगर फ्रिक्शन वो करती है, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए आपका शू सोल प्लेन है, इतनी फ्रिक्शन नहीं हो पाएगी अर्थ और आपके शू सोल के अंदर जितनी ग्रूव्स बनाने से हो जाएगी. क्यों? काज हमने पढ़ा था, काज ऑफ फ्रिक्शन, प्रेजेंस ऑफ ग्रूव्स एंड टाइनी हिल्स. सो इफ वी आर मेकिंग ग्रूव्स ऑन द शू सोल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज. आप देखना बच्चों, क्या होता है? आपके शू सोल को different companies are having their own patent grooving and all that. Patent मतलब क्या कहना? मतलब अलग अलग कंपनी, जो पर्पस वही है, वो जो ग्रूव्स बनाने, लंबे लंबे गड्ढे बनाने का, so that it should have more friction and you can walk easily without slippage. Even if you are walking on a wet area, wet floor or some polished surface, still it will help you walking properly without slippage. Second is, treads are made in tires to avoid skidding, wet and watery road. Yes. आपने कभी बच्चों देखा है आपके साइकिल के टायर या आपके बाइक का आपके घर में पापा के पास, या कार है आपके पास, उसके टायर के अंदर क्या होता है बच्चों? zigzag grooves होते हैं. zigzag grooves. ये आपका टायर है, डीप होते हैं थोड़े. कहने का मतलब क्या है? अबाउट वन. जब आप नया टायर लेते हो तो एक मोटरसाइकिल के और या कार के टायर के अंदर इट इज मोर देन इवन 1 सेंटीमीटर. आपके मोटरसाइकिल के टायर में अबाउट 1 सेंटीमीटर. एंड इफ यू वांट सी ए बिग टायर दैट इज ट्रक और ए बस, इट मे बी इवन 2 सेंटीमीटर ग्रूव्स. व्हाट इज द पर्पज ऑफ? जो अंदर गड्ढे डाल रखे हैं, एक पर्टिकुलर डिजाइन के साथ डाल रखे हैं, वो किस लिए? भैया आपने वो ट्रीड, यानी कि उसको ट्रीड बोलते हैं, वो जो पर्टिकुलर पैटर्न है आपका ग्रूव्स का, उसे हम ट्रीड बोलते हैं. ट्रीड्स वो क्यों डालते हैं? सीधा ही आप सपोज आपने रबर और रबराइज आपके टायर्स हैं, तो क्यों नहीं हम एक थिक शीट ले लेते हैं रबड़ की, उसे चलने देते हैं? तो क्या होगा बच्चों? अगर हम थिक शीट लेते हैं, अपर पोर्शन स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, और वही बात आ गई एडवांटेज. इट हेल्प्स इन मूविंग द कार और द बाइक और द मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. एक तो हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, और दूसरा बच्चों ये जो ग्रूव्स हैं, दे हेल्प यू मतलब दे हेल्प योर व्हीकल टू मूव ऑन ए इवन वाटरी रोड विदाउट स्किडिंग. वो मालूम है कैसे होता है बच्चों? ये जो ट्रीड्स बने होते हैं, इसके अंदर गड्ढे हैं,
When this tire is coming on a wet road or a watery road, what it is doing that tire by putting the pressure, the water which is on the road, it is swept away. धकेल दिया जाता है, परे धकेल दिया जाता है, and जो उस रोड है बच्चों, it is clear of the watery surface. यानी जो लेयर बन गई है आपके रोड के अंदर और वाटर की, उसको ये ट्रीट्स पानी को परे धकेल के उस लेयर को कम करती है. जब वो लेयर पानी की कम हो जाएगी, स्मूथनेस कम हो जाएगी, तो क्या होगा? योर कार कैन मूव स्मूथली विदाउट स्किडिंग. जब चलते हैं तो स्लिपिंग है, जब कार मूव करती है मोटरसाइकिल, उसे हम स्किडिंग कहते हैं. विदाउट स्किडिंग इट विल गो ऑन मूविंग इवन ऑन ए वेट रोड. सो दिस इज द व्हाट way of increasing the friction in case of tire. These treats बच्चों, these treats they help a lot on watery roads. Where it is a wet area, they are less useful on a dry road. But yes, it is there that we can increase the friction. क्यों? हम वो wet area को remove कर रहे हैं. तो क्या है? We are making it a bit dry. Dry friction is always more. So treats are made in the tires to avoid skidding wet and watery road. Yes, ये भी क्या है? एक method है to increase friction when the roads are wet and watery. Then spikes are provided in the shoes of sports person. What they are doing? They increase friction to avoid slippage. Yes, आपने देखा होगा. कई बार क्या होता है बच्चों, आजकल क्या है, एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेलते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास होती है. आपके जो क्रिकेट के ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड है, ऑल ग्रासी ग्राउंड. क्योंकि आजकल क्या है बच्चों, आप अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो क्या T20 हो, IPL T20 सीजन 13 था. अब ट्रेंड चेंज हो गया है. डाइव लगा के अपने आप को जमीन पे गिरा के फील्डिंग करते हैं. नॉवेल्टी आ गई है फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी. तो क्या है बच्चों, आपको चोट नहीं लगे तो क्या होगा? आपको चोट नहीं लगे तो वो ग्रासी फील्ड है, प्रॉपर ग्रीन ग्रास इज देयर. अब ग्रास के ऊपर चलना और एक सॉइल के ऊपर चलना, देयर इज अ डिफरेंस. बिकॉज ऑफ दिस ड्यू एंड ऑल दैट यू मे स्लिप ऑन द ग्रास. तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो आपके एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स मीट होती हैं, और अगर आपने कभी अच्छे स्पोर्ट्स शूज खरीदे हैं बच्चों, उसके नीचे आपके सोल के नीचे स्पाइक्स ऐसा लगता है जैसे रबर के वो कील से बना रखे हैं, बाहर निकले उभरे हुए हैं कुछ. वो क्या है? दे प्रोवाइड मोर ग्रिप ऑन द ग्राउंड व्हेन ए स्पोर्ट्स पर्सन इज रनिंग और प्लेइंग in the field. What they are doing? They increase friction to avoid slippage. उससे क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, वो स्लिप नहीं करता है, गिरता नहीं है. He can play, he can concentrate more on his game. Whether to concentrate, यार मैं गिर नहीं जाऊं, I may not slip and I may not fall and all that. Still sometimes this happens, अभी भी स्लीपेज होता है. बट हैविंग स्पाइक्स, वो जो एक तरह से रबराइज्ड, वो ऊपर से उभरी हुई, उसे कील से कह लीजिए, आप नेल्स कह लीजिए, इन द शूज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन. बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नोट व्हेन आई वाज ए किड लाइक यू, आई एम टॉकिंग ऑफ द लेट अर्ली 70s, और आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, यानी 63, 64, 65. आज से करीब 50-55 साल पहले की बात बच्चों. तब ये आप आजकल क्या आप शूज डालते हैं, उसके अंदर ग्रूव्स हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन, एंड मोर ओवर योर शू सोल इज नॉट ऑफ ए लेदर. आजकल वो गांव के अंदर अभी भी जूती डालते हैं, वो लेदर का उसका सोल होता है. आजकल क्या आ गया, PU सोल, PVC सोल एंड ऑल दैट. वो कम घिसता है. लेकिन क्या था बच्चों, लेदर सोल होते थे शूज के, वो बहुत जल्दी घिसते थे.
हम क्या करते थे बच्चों, लोहे के स्पाइक्स मिलते थे मार्केट में, हम अपने शू सोल के नीचे वो कॉबलर के पास जाकर वो लोहे वाले स्पाइक्स लगवाते थे, उसको स्टार बोलते थे, स्टार लगवा लिए। उससे क्या होता था बच्चों, हमें मालूम है, बिकॉज दीज डेज ट्रेंड ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड। We are going to get only one pair of shoes in a year. We have to pull on with that one pair. हम क्या करते थे, हमारा सोल नहीं घिसे, उसमें होल्स नहीं हो जाए, पानी नहीं घुसे अंदर, हमारी सॉक्स खराब नहीं हो, वेट नहीं हो, हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं आए। We used to have spikes of made of what? Iron, लोहे के। और आपने स्टिल अभी आप देख सकते हो कि आप फिर वही बात आ गई है, सी चेंज आ गया बच्चों। लेकिन अभी भी क्या है, इन राजस्थान और इन सम रिमोट विलेज एंड ऑल दैट, जहां हॉर्स कार्ट है, घोड़ा गाड़ियां हैं बच्चों, क्या आजकल भी क्या है, घोड़े के जो वो क्या होते हैं, खुर होते हैं, जो पांव के नीचे वो हार्ड होता है, उसके नीचे ऐसे वो इसमें होल्स होते हैं, वो कील से नेल से उसको घोड़े के पांव के नीचे लगा देते हैं, ताकि जब घोड़ा चलता है, हॉर्स इज वॉकिंग ऑन द और रनिंग ऑन द रोड एंड ऑल दैट, उसके जो जो खुर है नीचे वाले, वो घिस नहीं रहे, वो घिस नहीं। सेम वे वी यूज टू हैव दैट, उसको घोड़े की नाल बोलते हैं, जो आजकल वो कील नेल से लगती है। तो हम क्या करते थे, हम उन्हें स्टार्स बोलते थे, हम अपने शूज पे लगवाते थे, सो दैट वो हमारा लेदर का सोल जल्दी ना घिसे। आजकल क्या है बच्चों, पीयू सोल, पीवीसी सोल, बहुत अच्छे अच्छे सोल आ गए हैं जो कम घिसते हैं, बट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, spikes are provided in the shoes of sports person to increase the friction and avoid slippage. Yes, जिम्नास्ट आपने देखा होगा बच्चों, जिम्नास्ट गेम्स होती हैं, वो जिम्नास्ट वो बॉल यानी के साइड बार्स के ऊपर वो अलग अलग करता, अपने वो आइटम्स पे डिपेंड करता है, वो कैसे आप कौन सा साइड बार यूज कर रहे हो, हैंगिंग बार यूज कर रहे हो, रिंग्स यूज कर रहे हो। अब क्या होता है बच्चों, सिंस जिम्नास्ट हैव टू make balance of their body with their hands, sometime on the side bars, sometime on the this simple bar, or you can say sometime on the rings and all that. They are holding the side bars or the bar or the rings with their hands. Suppose if there is a sweat and all that, आपके हाथों में पसीना आ जाता है, वेट हो गई वो आपकी जो हाथों की जो लकीरें थी उसमें पानी आ गया, देयर माइट बी ए स्लिपेज व्हेन यू ट्राई। और जब जिम्नास्ट है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपको स्वेटिंग भी होती है। आपने देखा होगा बच्चों, एक साइड में जहां जिम्नास्ट के गेम्स हो रहे होते हैं, एक साइड में वो एक कुछ कंटेनर के अंदर व्हाइट पाउडर सा पड़ा होता है, जिम्नास्ट जाते हैं उसको, फिर वो उसके साथ साइड बार के ऊपर, रिंग्स के ऊपर अपने वो जो है आइटम्स, जो स्पोर्ट्स की डिफरेंट वो कर सकते हैं, एक्ट आइटम्स कर सकते हैं, एक्ट्स कर सकते हैं, दे डू एंड गेट स्कोर्स, एंड उससे आपको प्राइज वाइज या कंपटीशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट दैट जिम्नास्ट इज डूइंग व्हेन ही इज जस्ट थंपिंग हिज हैंड ऑन दैट व्हाइट पाउडर एंड हैविंग सम sort of that white powder on his hands. That is some type of coarse powder which is going to fill the lines of this what? In making that you not fill, it is going to make your hand more coarse, more rough. कहने का मतलब क्या, जब वो व्हाइट पाउडर आप अपने हाथों पे लगाते हो, आप अपने हाथों की वो स्मूथनेस को रफ करने जा रहे हो। उससे क्या होगा, जब ज्यादा रफ हो जाएंगी, it will have a better hold on the bars or the rings and all that, and you can do your act, your performance perfectly without slippage. So gymnast apply coarse material. कबड्डी वाले बच्चे खेलने जाते हैं, क्या करते हैं, आपने पकड़ना होता है दूसरों, you have to catch hold the other, जो
यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आपको एक दूसरे की तरफ आप कबड्डी डालने जाते हो, वो क्या करते हैं कई बार नीचे जमीन पे मिट्टी को अपने हाथों पे लगा लेते हैं। अब मिट्टी से लगाने से क्या हो जाएगा, इफ यू आर हैविंग सॉइल्स, रबिंग सॉइल ऑन योर हैंड, व्हाट विल हैपन, what will happen? It is going to increase the what? Gripping power of the hands. अब जब स्ट्राइक पे दूसरा आदमी आया हुआ है उसे स्ट्राइक बोलते हैं, वो कबड्डी डालने को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। कभी एक बार 30 सेकंड्स इस टीम को मिलते हैं, दूसरी बार 30 सेकंड्स उस टीम को मिलते हैं। जब वो स्ट्राइक पे जाती है एक टीम दूसरी टीम के साइड में जाती है, ठीक है, वो क्या है, व्हाट ही इज डूइंग, जब आप उसको कैच होल्ड करते हो, अगर आपके हाथों की ग्रिप मजबूत है, आप उसे अच्छी तरह से जकड़ लोगे, पकड़ लोगे, स्लिपेज नहीं होगा। जो स्ट्राइक डालने आया है एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन, वो आपकी ग्रिप में अच्छी तरह से आ जाएगा, वो आपके ग्रिप से जल्दी से छूट के अपनी साइड में नहीं जा पाएगा, पॉइंट्स नहीं ले पाएगा। तो कबड्डी वाले भी जैसे जिम्नास्ट कोर्स मटेरियल करते हैं, कबड्डी वाले क्या करते थे, पुट सॉइल्स अपने शरीर पे लगा, यानी कि वो हाथों पे, टू हैव मोर ग्रिप एंड ऑल। अगेन मशीन्स बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल। यस, आपने देखा होगा बच्चों, वी आर समवट डिपेंडिंग अपॉन मशीन्स एंड ऑल दैट। वो मशीन्स किससे चलती हैं, मोटर है, मोटर से आप फैन बेल्ट या दूसरे वो पटा जिसको बोलते हो, आप बेल्ट लगा के आप उस दूसरे चीज को घुमाते हो। वो क्या कर रही है बच्चों, फ्रिक्शन से। अब क्या होता है, जो मटेरियल है फैन बेल्ट्स का या कॉमन बेल्ट्स का, वो ऐसा बनाया जाता है विच इज प्रोवाइडिंग मोर रफ सरफेस एज कंपेयर टू द अदर। उससे क्या होगा, जब रफ बनेगी, वो रफ सरफेस होगी उसकी फैन बेल्ट की या आपकी बेल्ट की, तो क्या होगा, वो जो मोटर के साथ आप दूसरी मशीन को घुमाना चाहते हो, जब वो बेल्ट उसके ऊपर मोटर घूमेगी, बेल्ट ऑटोमेटिकली घूमेगी, यू कैन रन द अदर मशीन आल्सो। तो कहने का मतलब क्या है, मटेरियल ही ऐसा यूज करते हैं ताकि वो जो बेल्ट बनती है, फैन बेल्ट बनती है या कॉमन बेल्ट बनती है, जो उस मशीन के अंदर एक से दूसरी मशीन, दूसरी तीसरी मशीन को हम मूव करते हैं, वो कोर्स होगी, रफ होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, योर मशीन कैन बी रन प्रॉपरली। सो मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल। मटेरियल ही ऐसा लेते हैं ताकि वो जो बेल्ट बनती है वो काफी कोर्स और रफ होती है। तो दीज आर द मेथड्स। क्यों हेयर, व्हाई वी आर इंक्रीजिंग, व्हाई वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स और मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, बिकॉज हियर दिस फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस एंड वी वांट टू इंक्रीज इट। लेकिन वही आपके टायर घिस रहे हैं, आपके मशीन के कल पुर्जे, पार्ट्स ऑफ योर मशीन आर बीइंग डैमेज्ड नाउ ऑल दैट, वो घिस रहे हैं, या आपका शू शोल घिस रहा है, वही शू शोल घिस रहा है तो भाई उसमें लोहे वाले स्टार लगवा लो जो हम लगवाया करते थे, ठीक है। तो जैसे मेथड्स है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, देयर आर मेथड्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन आल्सो, एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। यस, अब हमने पढ़ा था काज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर थी, मेनली स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ द सरफेस। मोर द स्मूथनेस, lesser will be the friction. So methods of reducing, कम करनी है फ्रिक्शन, मेक द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग इट। आपने देखा होगा आपके स्कूल में झूले लगे हुए हैं, एवरी टाइम आपका जो सीसा होता है जिसमें छोटे बच्चे वो ऊपर से नीचे आते हैं स्लाइड करते हुए, उसको पॉलिश करवाया जाता है। व्हाट फॉर? सो दैट इट इज रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ एंड स्मॉल किड्स कैन एंजॉय दैट सीसा स्लाइड, नॉट सीसा। सीसा तो ऊंचे नीचे वाला होता है, स्लाइड बोलते हैं इसको, सॉरी। सीसा तो वो जो जिसके ऊपर एक साइड में एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड में दूसरा बच्चा बैठता है, वो झूलते हैं। हियर इट इज स्लाइड, स्लाइड डाउन
ओके, स्लाइड को वी आर गेटिंग इट पॉलिश एवरी ईयर। घर में भी ऐसा ही होता है। पॉलिश करने से क्या होगा बच्चों, किसी भी चीज को जहां रबिंग है, कुछ भी है, इफ यू पॉलिश इट, फ्रिक्शन विल बी reduced. Yes, if I am writing, friction can be reduced by applying lubricants like oil, grease, powder also. What is a lubricant? पहली बात तो सबसे बड़ा होता है, लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट क्या है बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस है, इफ इट इज अप्लाइड, a substance which reduce friction and are called lubricant. In fact, what these lubricants are doing? अब कोई बात, why friction is there? Because of the presence of the tiny hills and the what grooves, and there is a interlocking. अगर बच्चों हम वो ऐसा कुछ मटेरियल यूज करें so that the tiny grooves are filled and tiny hills के तक या उससे भी ऊपर कोई एक ऐसी लेयर आ जाए, यानी वो जो कहीं ग्रूव्स हैं वो तो भर गए, वो गड्ढे तो भर गए, और जो टाइनी हिल्स हैं उसके ऊपर तक एक वो समतल स्मूथनेस, वो स्मूथ लेयर बन जाए, तो वी हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा मटेरियल. सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा मटेरियल? ऑयल और ग्रीस और ग्रेफाइट, talcum powder also, which is powdery smooth. वो क्या करता है बच्चों? अब वो उससे क्या होगा बच्चों? वो क्या होगा? Surface will become more smooth and there will be less friction. But one thing we have to keep it in mind, we can reduce the friction, but we cannot make it zero. फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे जीरो नहीं कर सकते. वी कैनॉट एलिमिनेट इट टोटली. फ्रिक्शन विल बी देयर, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी मेड जीरो, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. आपने देखा होगा, आप कैरम खेलते हो, आप स्ट्राइकर से आप उसकी कॉइन्स को टच करते हो, स्ट्राइकर इज नॉट मूविंग प्रॉपरली, आप टैल्कम पाउडर यूज कर लेते हो, टैल्कम पाउडर को उससे रब करते हो उस बोर्ड के ऊपर, बोर्ड बिकम स्मूथ एंड देन यू प्ले विद योर स्ट्राइकर एंड ऑल दैट. इट इज इजी टू प्ले, इट इज इजी टू पुल द कॉइन्स. उसके लिए बच्चों क्या है, कैरम के लिए डोंट यूज दैट टैल्कम पाउडर, इट इज वेरी कॉस्टली बाबा. बोरिक पाउडर आता है, बोरिक एसिड जो है, बोरिक पाउडर, उसको बोरिक पाउडर के नाम से मार्केट में मिलेगा आपको फ्रॉम द sports stores and all that. Even if you can purchase it from the chemist also, boric powder, it is having more smoothness as compared to that your talcum powder. It is cheap also. So boric powder we were using when we were playing carom and all that in our time. So ये boric powder, grease, oil, ठीक है. मैंने अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट में कि मैंने अभी ऑयल यूज किया है जस्ट टू मूव दैट बॉल बेयरिंग, क्योंकि वो एक साल से अभी कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी लैब के अंदर, वो पड़ा उसमें रस्ट लग गई, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था. जस्ट टू मूव इट मैंने क्या किया, उसको पहले जोरिक से वो जो रस्ट रिमूव करने वाला लिक्विड होता है उससे वाश किया, देन आई हैव अप्लाइड सम मोबिल ऑयल. वो क्या है, उससे आपकी जो रफनेस थी उन पार्ट्स की, उसको, अब क्या होता है बच्चों, आपके मशीन के वो पार्ट्स हैं जहां रबिंग है वो घिसते हैं, अगर आप उनके अंदर ग्रीस या ऑयल लगा देते हो, उनकी जो आपस में वो क्या हो गया, अब वो जो एक दूसरे के अंदर वो जो आपके मशीन पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इनफैक्ट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. टच वो किस में मूव कर रहे हैं, एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल इज देयर. एक तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके मशीन पार्ट्स की, लाइफ बढ़ेगी, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वियर एंड टियर कम होगा. वियर एंड टियर, वो घिसेंगे नहीं, आपको बार बार उन पुर्जों को, उन पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा. सो फर्स्ट पर्पस क्या है बच्चों हमारा रिड्यूस करने का? हार्मफुल है, लेस हो जाए फ्रिक्शन,
So friction can be reduced by making the surface smooth. Friction can be reduced by applying the lubricants. And lubricants are the substance what? Which reduce friction. ठीक है? That can be reduced by using wheels to move object. Yes. Rolling friction is less than the sliding friction. More less than the static तो भूल जाओ, हमने मूव करना है किसी चीज को. आपने देखो आजकल बच्चों बस स्टैंड पे अगर इफ यू हैपन टू ट्रेवल बाय एयर तो एयरपोर्ट पे इवन छोटे छोटे बच्चे वो आपके वो बैग को पुशिंग करके वो हैंडल बन गया, बड़े आराम से वो चल रहा है. रीजन भी वो जो टोटल उसका जो वेट था बैग का वो किसके ऊपर हम डाल रहे हैं? व्हील्स के ऊपर. रोलिंग फ्रिक्शन, वी आर कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय पुटिंग व्हील्स अंडर दीज हैवी बैग्स एंड ऑल दैट. जो बैग्स हैं सो उसमें क्या कर रहे हैं? वह क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स. किसी भी चीज, मैंने उस दिन भी आपको बताया था वो बुक के ऊपर वो 3 सेल रख के हमने क्या कर रहा था, वो एक तरह से व्हील का काम करते हैं. हैवी बॉक्सेस को आपने मूव करना है. अगर आप राउंड पाइप लेके 2 या 3 उसके नीचे रख के उसको मूव करते हैं, इट इज क्वाइट यूजिंग. उसमें क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? रोलिंग फ्रिक्शन में. सो बाय यूजिंग व्हील्स ऑल्सो यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. और आजकल तो बच्चों क्या है, यानी कि कॉमन जो मार्केट में भी आपके वो ब्रीफ केसेस वगैरह मिलते हैं उनके अंदर भी व्हील्स लगे होते हैं. पहले कंपनीज ने शुरू किया, फिर आम जो मैन्युफैक्चरर्स ने शुरू किया. रीजन में इट इज इजी टू हैंडल दिस. वेट ज्यादा हो जाता है तो उसको मूव करना इजी हो जाता है. यू नीड नॉट हैव पोर्टर्स. आपको पुली वुली करने की बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे जरूरत नहीं पड़ गई. ओके, लास्ट, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट. यस, जो पार्ट्स एक दूसरे के अंदर मूव करते हैं उसके अंदर अगर हम बॉल बेयरिंग, हेयर आल्सो क्या है बच्चों, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो स्लाइड कर रहा है कोई चीज, हम स्लाइड की बजाय उसको हम क्या कर रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. और रोलिंग फ्रिक्शन आल्सो अगेन वी आर डिवाइडिंग. एक बॉल रोल करे, इफ वी आर कन्वर्टिंग दैट वन बॉल इनटू मैनी बॉल्स, टाइनी बॉल्स, उसमें भी क्या होगा? फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड मोर. I just wanted to show you this ball bearing. What ball bearing is? अब क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर ये छोटी छोटी बॉल्स नजर आएंगी आपको. मैं जब हम क्लास ले रहे होते हैं बच्चों, मैं एक एक बच्चे के पास जाके दिखाता हूं. बट हियर इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू कैन सी, एक ये रिंग है बच्चों. इस रिंग के अंदर ये बॉल्स फिट हो जाती हैं. अब मैं आपको दिखा रहा हूं. इफ आई कैच होल्ड दिस रिंग, मैंने इसको जकड़ लिया है, इसके अंदर अब ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स हैं. आई कैन इजिली मूव बाय होल्डिंग दिस इनसाइड रिंग. अब क्या बच्चों, अगर इफ दिस पार्ट इज अलाउड टू स्लाइड ओवर, मूव ओवर द अदर पार्ट विदाउट हैविंग द बॉल्स, friction will be more. Since by putting these small ball inside, अभी तो क्या मैंने आपको बताया ना बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सेट राइट किया अभी, अदरवाइज तो उसको ऐसे घुमा दो तो ये घूमता रहता है काफी देर तक. आपने देखा होगा बच्चों, आपके व्हीकल्स हैं, इवन आपके साइकिल के अंदर ये जो आपकी हब एंड एक्सल होता है, आगे वाला जो टायर है आपका, पीछे वाला टायर है, उसके अंदर एक एक्सल होता है, साइड में 2 बॉल बेयरिंग, छोटी छोटी, इतनी छोटी 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 बॉल्स होती हैं, स्टील की बनी, हार्ड स्टील की, टेम्पर्ड स्टील की. ग्रीसिंग करके उसको उसमें डाल देते हैं. वो जो आपके एक्सल है, साइड में हब जो है उसके अंदर बॉल्स हैं, एक तरह से बॉल बेयरिंग है, एक्सल के ऊपर वो हब घूमती है. ये आपका एक्सल जो बीच वाला रॉड जो हब है उसके ऊपर फिट हो गई. उससे क्या होगा बच्चों, एक्सल आपका ऐसे है,
व्हील आपका उसके ऊपर, हब के ऊपर घूम रहा है, स्मूथनेस है चलने में, फ्रिक्शन हब और एक्सल के बीच में स्लाइड नहीं होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस। आपके जो क्या कहते हैं कार्स होती हैं, इफ देयर इज फ्रंट फोर्स वाली, यानी फ्रंट व्हील के अंदर फोर्स है, तो पीछे वाला जो होता है एक्सल, बड़े वाला एक्सल, उसकी साइड में बॉल बेरिंग्स लगे होंगे, वो फिट कर दिए जाते हैं। इवन बच्चों आपके सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, इसके अंदर भी बुश यूज होते हैं। जो आपका रोटर है, वो आपकी जो घूमती है आफ्टर मैग्नेटिज्म एंड ऑल दैट, राउटर बोलते हैं उसको, उसके नीचे एक वो क्या कहते हैं एक्सल है, ऊपर वाली साइड में लंबी एक एक्सल रॉड है, एक्सल रॉड है, उस नीचे भी बॉल बेरिंग है, ऊपर भी बॉल बेरिंग है। अब जो अंदर जो मैग्नेट बन के उसको रोटेट करती है, रोटेशन में इंस्टेड ऑफ sliding friction, we are converting by putting two ball bearings in a ceiling fan into what? Rolling friction. Rolling friction. अब क्या होता है बच्चों, फैन के अंदर if instead of using ball bearing, अगर आप बुश यूज करते हो, बुश वाले भी मिलते हैं, they are cheaper, they are bit cheaper. सीलिंग फैन और आपका क्या कहते हैं दूसरे आपके पेडेस्टल फैन, टेबल फैन, लेकिन आजकल बहुत कम नहीं बनते हो। रीजन भी एक तो क्या है, एवरी ईयर वो आपका बुश, बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर, वो आपके जो पार्ट्स हैं, वो जो बुश है वो वियर एंड टियर हो जाएगा। एवरी टाइम यू हैव टू गेट इट चेंज, एवरी टाइम मैकेनिक हैज टू कम एंड ही हैज टू चेंज इट। ग्रीसिंग करो तो ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ती है ऑयल एंड ग्रीसिंग करने से, बट स्टिल बैरिंग्स वर्क मोर एफिशिएंटली, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, आपकी फैन की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। आज से 5-7 साल पहले बच्चों ओरिएंट फैन की एक एड आया करती थी, एक एड आती थी, डबल बॉल बेरिंग पीएसपीओ फैन। डबल बॉल बेरिंग मींस एक बॉल बेरिंग ऊपर, एक बॉल बेरिंग नीचे, एक बॉल बेरिंग ऊपर और एक नीचे, डबल बॉल बेरिंग पीएसपीओ, पीएसपीओ। और वो चाटा पड़ता था उस बंदे को, क्या तेरे को ये भी नहीं मालूम पीएसपीओ क्या है? पीक स्पीड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, यानी फुल स्पीड पे भी आपके फैन की जो परफॉर्मेंस है वो हिलता नहीं, झुलता नहीं, साउंड नहीं करता। पीक स्पीड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, पीएसपीओ डबल बॉल बेरिंग। तब बाद में वो क्या धीरे धीरे हर किसी ने वही टेक्निक, वो डबल बॉल बेरिंग। नाउ व्हाट्स आवर सीलिंग फैन और अदर फैन वी आर यूजिंग एट होम एंड ऑल दैट, दे आर ऑल हैविंग डबल बॉल बेरिंग्स, डबल बॉल बेरिंग्स। तो क्या है बच्चों, फ्रिक्शन कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, हब एंड द एक्सल और अदर मूविंग पार्ट्स। So I have shown you, and with this we come to the end of our lecture. 40 minutes के आसपास बच्चों होने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पॉसिबल हुआ तो I may be bringing good one and I will show you. Just it goes on rotating. ठीक है, चलिए with all this and last topic is that is what? Fluid friction. Fluid मतलब air and water. Why they are called fluid and all that? What type of opposing force they are यानी कि exerting and what we call it, हम उसे ड्रैग बोलते हैं। सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर टाइम ने परमिट किया, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट एंड लिफ्ट एंड ऑल दिस मौका लगा तो मैं आपको वो फ्लूइड फ्रिक्शन के साथ साथ वो टेस्ट जो मैं बताया करता हूं क्लास के अंदर, व्हेन वी आर हैविंग रेगुलर क्लासेस, हाउ योर एरोप्लेन फ्लाई, टाइम परमिट किया तो वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी।